ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھینس کالونی میں پیپلز پارٹی گروپ بندی کا شکار، عوام پریشان، نظر حمایتی کی خصوصی رپورٹ۔ کراچی ضلع ملیر کے علاقے بھینس کالونی ابراہیم حیدری ٹاؤن میں عوام مسائل کے گرداب میں پھنس گئے۔ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں کی باہمی چپ کلش اور گروہ بندی نے عوام کو سخت مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ علاقے میں پارٹی کے 4 سے 5 مختلف گروہ سرگرم ہیں، جن کی آپسی رساکشی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے CEO نظر حمایتی نے اپنی خصوصی رپورٹ میں علاقائی صورتحال کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق نذیر بھٹو، داؤد رفیق جت، عبدالستار حمایتی، ذوالفقار علی ٹالانی، رسول خان سواتی، عبدالرحیم حمایتی اور جاوید اقبال کاکو سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے علاقے میں اپنی اپنی الگ سیاسی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ جب بھی کوئی شہری اپنے مسائل لے کے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ نظر حمایتی کا کہنا ہے کہ عوام کو بنیادی مسائل کے حل کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی رہنما ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ مقامی قیادت کی آپسی کھینچا تانی کی وجہ سے ترقیاتی کام ٹھپ ہو چکے ہیں اور عوامی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن جو ضلع ملیر کا حصہ ہے، 11 یونین کمیٹیوں UCs پہ مشتمل ہے۔ ان میں چکنڈی، کیٹل کالونی، مجید کالونی، مظفر آباد، شیرپاؤ، ابراہیم حیدری، چشمہ گوٹ، ریڑی گوٹ، علی اکبر شاہ گوٹ، قائد آباد اور جعفر طیار شامل ہیں۔ ان تمام یونین کمیٹیوں کا انتظامی کنٹرول نذیر بھٹو کے ہاتھ میں ہے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق کسی بھی مقام پہ عوامی مسائل کے حل میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ مسائل کے حل کے بجائے منتخب نمائندے آپس میں اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ علاقے میں پانی، صفائی، گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں جیسے مسائل سنگین ہو چکے ہیں، مگر کوئی بھی ان مسائل کو حل کرنے کو تیار نہیں۔ عوام نے اعلیٰ قیادت اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ مداخلت کر کے علاقے کے مسائل حل کروائیں اور پیپلز پارٹی کے گروپ بندی ختم کروائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ نظر حمایتی کی یہ خصوصی رپورٹ علاقہ مکینوں کی آواز بن کے سامنے آئی ہے اور عوام کو امید ہے کہ ان کے مسائل کو اب سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سچ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ میری کافی رہنماؤں سے بات بھی ہو چکی ہے کہ یار آپ صرف اور صرف کیٹل کالونی دکھا رہے ہو۔ بھائی کیٹل کالونی ہم دکھا رہے ہیں وہاں پر جہاں پر مسئلے مسائل ہیں، جہاں عوام پریشان ہے۔ ہمیں کسی بھی نمائندے سے، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو، اس کے ساتھ دشمنی نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صرف 1-2 بندوں کو آپ لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہو۔ بھائی آپ کو وہاں کی عوام ٹارگیٹ کر رہی ہے جو وہاں رہتے ہیں۔ ہم آپ کا نام کبھی بھی نہیں لینا پسند کرتے، ہمیں شوق نہیں ہے آپ لوگوں کا نام لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ویڈیو چلانے سے، ہمارا لکھنے سے آپ لوگوں کا بجٹ بڑھ رہا ہے۔ کیا بڑھتا ہے؟ بجٹ بڑھتا ہے۔ یہی ہماری ویڈیو اٹھا کے آگے آپ پیش کرتے ہو کہ یہ دیکھو جی ہم تو نہیں لکھ رہے نا، لوگ لکھ رہے ہیں، یہاں یہ حالات ہیں۔ وہاں سے جو بجٹ آتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ کہاں جا رہا ہے وہ آپ جانو، اللہ جانے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم تو آپ لوگوں کے بجٹ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ۔ صحیح۔ اور دوسری بات کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے یہ سوال کیا کہ بھائی صرف جاوید اقبال کاکو کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر لوگ صرف جاوید اقبال کاکو کو جانتے ہیں، رفیق داؤد جت کو کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ ریلوے والی سائٹ پہ ہے، کیا نام ہے دوسرا، وہ ہمارا ابڑو برادری کا ہے، میرے کو ان کے نام تک نہیں آتے، لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ جانتے ہیں رسول خان سواتی کو، لوگ جانتے ہیں جاوید اقبال کاکو کو، لوگ جانتے ہیں ذوالفقار علی ٹالانی کو، لوگ جانتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے،
ये अब्दुल सत्तार हमायती को लोग जानते हैं, नजर कमाल को लोग जानते हैं, मोहम्मद शानी को लोग जानते हैं, अब्दुल रहीम हमायती को लोग जानते हैं, मुमताज अली हमायती को। ये जो फ्रंट पे हैं, इनके अलावा लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और लोग जानते हैं नजीर भुट्टो और संजय दत्त, जो आज 18 फरवरी रेडीगोट में मिलने आ रहा है रफीक दाऊद से। ठीक है, सिर्फ फोटो सेक्शन होते हैं, ये पोस्ट होती है, ये पोस्ट होती है और ये पोस्ट होती है। पोस्ट हमें भी बहुत अच्छे आती हैं, लेकिन वो लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, काम लोग कहते हैं कि सिर्फ फोटो में होता है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आते, वो भी वीडियो में आपको इसी बीच में शेयर करूंगा। लोग आते, पीपल्स पार्टी के नजीर भुट्टो आए, देखे करीन आई, फोटो निकले, उसके 1 घंटे बाद करीन गायब, खाना गायब, जैसे पिछले 1.5 सालों से हालात हैं वही हैं। अब मसला है अल्लाह वाली मस्जिद रोड नंबर 1 पे मुझे कहा पीपल्स पार्टी के लोगों ने कि भाई वो जो गैर जानिबदाराना अब खबर दे रहे हो, मस्जिद के सामने जो नाला है उस पे कोई दूसरी तजावजात बनी हुई हैं, कुछ उन्होंने नाले को जो ना वो अपनी कुछ चीजें बनाई हुई हैं। भाई आप आओ वहां पे, आके वहां दिखाओ कि ये नाला है, इस नाले की वजह से इन लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात तो हो चुकी है नजीर भुट्टो साहब से पिछले साल, अभी तक उन्होंने कोई जो ना वो करीन और मशीनरी नहीं दी है ताकि ये गैर जानिबाना जो तजावाजात हैं उसको हटाएं। ठीक है जी, तो कहने का मकसद ये है, हमने तो आपकी हर जगह पे वो बात की। और अब सवाल आता है, रफीक दाऊद वो भी है इसका जिम्मेदार, लेकिन रफीक दाऊद को आपकी अवाम जानती नहीं, भैंस कॉलोनी की अवाम जानती नहीं। ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि ये हदूद हमारी है, ये हदूद रफीक दाऊद की है, ये हदूद अब्दुल सत्तार हमायती की है, ये हदूद मलीर की है। अब हो क्या रहा है, जो चारों लोग फायदा उठा रहे हैं, अवाम जाती है जावेद इकबाल काकू के पास, वो कहते यार ये हद मेरी नहीं है। अवाम जाती है अब्दुल सत्तार के पास, वो कहते हैं यार ये हद मेरी नहीं है। अब्दुल सत्तार हमायती मेरा रिश्तेदार है, ये सारे मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, खानदान है मेरा। और वो दूसरे जो अबड़ों वाले साइड पे जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो दाऊदचुरंगी में आता है, दाऊदचुरंगी वाले कहते हैं मलीर में आता है, मलीर वाले कहते हैं रफीक जत के पास जाओ। करेगा कौन भाई? जावेद इकबाल काकू साहब जो हैं वो अपने चंद जहां जहां उसका हाथ है वहां वहां वो कर रहे हैं। उसके अलावा इतना बड़ा इलाका है, वो नजर कमाल है, वो ना रोड पे है ना बोर्ड पे है। वो हमारा जो वो क्या नाम है अब्दुल सत्तार हमायती, अल्लाह उसे जो है ना और भुट्टो की सीट पे बिठाए, वो भी सिर्फ जो है ना नजीर भुट्टो के साथ ही उसकी तस्वीरें ही हमने देखी हैं, कभी उसका हमने काम नहीं देखा। मर के कब्र में जाना है, हमने अब्दुल सत्तार हमायती का कभी काम नहीं देखा। जब पीपल्स पार्टी की हम कवरेज करते थे आज से 2.5 साल पहले, तब अब्दुल सत्तार हमायती, आगा रफीउल्लाह, हकीम बलोच साहब, जावेद इकबाल काकू, जुल्फकार अली टालानी, ये सारे एक ही चरपाई पे बैठ के रोटी खाते थे। आज तुम्हारी रोटी और 9 नंबर पे पड़ी हुई है, अब्दुल सत्तार हमायती 6 नंबर पे नजर कमाल के साथ खा रहा है, वो दूसरे जो है वो मोड़ पे खा रहे हैं। ये कहां गए हो भाई? वो तुम्हारा एका कहां गया है? इसका नुकसान सारा हम गरीबों को भुगतना पड़ रहा है, पता है। और रफीक दाऊद साहब जो हैं उसका तो पता ही नहीं है वो भी कोई है, वो सिर्फ नजीर भुट्टो के साथ ही चिपका रहता है। ठीक है ना, आप लोगों को इतराज है ना रफीक दाऊद के खिलाफ नहीं लिखते। भाई आप लोग बताओ ना उसका इलाका कौन सा है, जहां जहां अवाम बुला रही है वहां वहां हम लोग कवरेज करेंगे। ठीक है, जो जो मसले मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, हमें अवाम बुला रही है, हमारे नुमाइंदों को बुला रही है, हम लिखेंगे, छापेंगे। वो ख्वाह नजीर भुट्टो हो, चाहे अब्दुल सत्तार हमायती हो, चाहे जुल्फकार अली टालानी हो, चाहे रसूल खान स्वाति हो, वट। ठीक हो गया, हम लिखेंगे, छापेंगे, सच सामने लाएंगे। अगर यही चीजें हमारी गलत हैं
तो आप लोगों ने पहले ही मेरे ऊपर अटैक करना है, कोई मसला नहीं है, और करते हुए भी आ रहे हो। जैसे वो जुल्फकार अली टालानी ने लिखा है कि ब्लैकमेलरों से हम निपटेंगे, तुम लगे रहो शेर खान, यानी कि आप लोगों ने लोग रखे हुए हैं ना ये इंतशार फैलाने के लिए। सब रोटी खाते हैं भाई, पीठ पीछे भाई, बीच में कसाई वाला काम मत चलाओ, पॉलिटिशियन वाले बयानात मत दो। ये क्या कहते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों से जो ना वो होते हैं फसाद, जो कौमियत के और लासानियत के, फिरकावारियत के, ये जड़ होती है झगड़ों की, समझा। आज नजीर भुट्टो साहब रेडीकोट में आए दाऊद जद के साथ मिलने के लिए। भाई हम ना नजीर भुट्टो के दुश्मन हैं, ना दाऊद जद के दुश्मन हैं, ना हम ये क्या कहते हैं जुल्फकार टालानी के दुश्मन हैं, हम हैं सिस्टम के दुश्मन। जो आपको बजट मिल रहा है उस बजट से आप थोड़ा यहाँ कर रहे हो, थोड़ा वहां कर रहे हो। अब जुम्मा हिमायती गोट की आपने लाइनें बिछाई, क्या हम लोगों ने आपका वो सराहा नहीं, हम लोगों ने आपकी कवरेजें नहीं की कि नहीं आपने नहीं बनाया है, मेरे अब्बा ने आगे बनाई। उधर भी हमें अपना बंदा नजर नहीं आया, सही है। जहां जहां आप लोगों ने काम किया वहां वहां आपने बुलाया, हमने आप लोगों के एंटी चलाई कि नहीं ये रोटी नहीं है, ये चूंचू है। हाँ हमने ऐसा किया है। अल्लाह अल्लाह करो भाई, अल्लाह अल्लाह करो, खुदा का खौफ करो। अपना बिजनेस कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग और प्लाट लो और कंपनियां बनाओ और आप तरक्की करो, अल्लाह करे, सही है। इसका हिसाब अल्लाह लेना है, अल्लाह ने लेना है, मैंने नहीं लेना, मेरे अब्बा ने नहीं लेना, ठीक हो गया। लेकिन जो बजट आप लोगों को इस अवाम के लिए मिल रहा है वो यूज करो। क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? मैं आपको वो लोग बताऊंगा जिन्होंने बयान दिया है वीडियो में कि हमारे जनाजे जब हम उठाते हैं तो गोबर अपनी मदद आप हटा के जनाजे लेके जाते हैं। मस्जिदों का कोई वो नहीं है। वो 8 नंबर वाली वीडियो है, वहां पे भी मस्जिद का हवाला है और अवाम परेशान है, सही है। ये 1 नंबर पे ये तो अल्लाह वाली मस्जिद के बिल्कुल अंदर पानी जा रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता किसी को भी। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। और मैं जब तक जिंदा हूं, पता नहीं है, तब तक हर चीज सामने लाता रहूंगा। बहुत है रिपोर्टर मेरे भैंस कॉलोनी के अंदर, पूरे मलीर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज पे डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेकिन मैं एहतियात नहीं करता। वो आपकी तस्वीर लगा के पीछे जो ना वो कुछ और लगाऊं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है हक और सच लिखना, छापना, चलाना। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो, खास करके भैंस कॉलोनी की आवाम को अल्लाह करे होश आ जाए। अल्लाह हाफिज। हो गया और कभी ऑन है कभी ऑफ है, मगर 1 साल से तो मुसलसल बंद है आने जाने का। और यहाँ पे जनाजों के, जैसे कि भाई ने एक ने बताया कि 2 जनाजे ऐसे हुए हैं, एक तो मेरा उस्ताद था, उसके जनाजे के लिए हमने पहले सफाई की है फोड़ों से लेके, खुद अपनी मदद आपके तहत, और उसके बाद जनाजा यहाँ से निकाला। फिर मेरे ताया का इंतकाल हुआ तो उसका जनाजा भी हमने इसी तरीके से सफाइयाँ करके, आप देख सकते हैं तकरीबन 1 साल हो गया। यहाँ पे पाइप डलवा दिया जाए या अगली लाइन साफ़ कर दी जाए तो जो है ना, अपनी मदद आपकी कोशिश तो हम कर चुके हैं, बस अब एंड हो गया। अब जो है ना हमसे नहीं हो पाता। अब टोन नाज़िम से इनसे रिक्वेस्ट है। तो सर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ जो यूसी कौन सी लगती है, उन टाउनों को यूसियों को आपने कभी कंप्लेंट करी, आवाज़ उठाई? कई दफ़ा आए हैं, देखा, कभी कोई मामला कभी कोई मामला, ये काम रुक जाता है। भारत थोड़ा बहुत इशारा होता है, गाड़ियाँ आती हैं, वीडियो बनती हैं, वीडियो के क्लिप बनते हैं उनके, और शावल वगैरह दिखाए जाते हैं, और उसके बाद रोडों से गायब है। काम वहीं का वहीं है। वीडियो के अंदर काम बहुत हुआ है। वीडियो तो आए हैं, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है, काफ़ी वीडियो बनी है, वीडियो में काफ़ी काम हुआ है। ऐसे ही हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है। कोई नहीं देख रहा, नजर आते हैं बस वही चले जाते हैं, फिर अपना जो उनसे होता है थोड़ा बहुत करके उसके बाद निकल जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज HD चैनल।